Good morning class, how are you? So class, today we are going to discuss about the exercise 8.2. As before हमने इससे पहले 8.2 के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एंगल्स की वैल्यू फाइंड की थी कि पार्टिकुलर एंगल पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। सो इसमें हमने बहुत सारा डिस्कस किया था, नॉट डिफाइंड भी डिस्कस किया था, मैक्सिमम वैल्यू 1 भी की थी, माइनस वैल्यू अभी नहीं आएगी। 11th-12th क्लास जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब माइनस की वैल्यू यूज़ करेंगे, हम अभी कुछ नहीं यूज़ करेंगे। अब प्लस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.2। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज sin 60 cos 30 degree plus sin 30 and cos 60. I think so we are done in the last exercise, lecture about this question we discussed. Now sin 60 is root 3 upon 2. Cos 30 is root 3 upon 2 plus sin 30, that is 1 upon 2, cos 60, that is 1 upon 2. Root 3 into root 3, that is 3. 2 into 2 is 4 plus 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4. So class, if you are going to take an LCM, so as you know that LCM is 4. So 4 divided by 4 is 1, 1 into 3 is 3 plus 4 divided by 4 is 1, 1 into 1 is 1. That is 3 plus 1 is 4, 4 upon 4, that is answer is 1. Isn't doubt class? Okay, what I have done, simple, I used the value of particular angle. That is sin 60 is root 3 upon 2, cos 30 is root 3 upon 2, sin 30 is 1 upon 2 and cos 60 is again. So I am going to rub this. So class, second question is 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60. Send out class. Now 2 into tan 45 is 1. What is their square? Plus cos 30 is root 3 upon 2. So again there is a square, minus square is there, okay, minus sin 60 is root 3 upon 2. Again there is a square. 1 into 1 is 1, 2 into 1 is 2. So root 3 का square is 3, root 2 का square is 4, minus root 3 का square is 3 and 2 का square is 4. So plus 3 upon 4 minus 3 upon 4, both will cancel out. What is the answer? 2 is the answer. Isn't doubt class? What you have done, we will use the simple values of angles from this chart. Now class, third question, that is cos 45 upon its sec 30 plus cosec 30. Full class, cos 45 sec 30 plus cosec 30. Okay, cos 45 is 1 upon root 2. Sec 30, sec is this, 30 is 2 upon root 3 plus cosec 30 is 2. Is that out class? Now it's simple value, but in this what we will do, first of all we find out the LCM. That is 1 upon root 2 upon 1 into 2 is 2 plus root 3 into 2 is root 2 root 3. What is LCM? 2 root 3 into 1, that is root 3. Okay. Now 1 upon root 2, that is 2 plus 2 root 3 upon root 3. Now class, what we will do, 1 upon root 2, divide sign is this, again 2 plus 2 root 3 upon root 3. Now I will change in multiply.
Is that out? So 1 into root 3 is root 3. And what is this? 2 root 2 plus 2 root 6. Now class, one thing is there. There is a root in the denominator. In this unit, if in 9th also, if there is a root in the denominator, we will rationalize the value as you done in the class 9. You have to rationalize the value. Isn't our class? So I am going to rub this part. Okay. Now root 3 upon 2 root 2 plus 2 root 6. What is rationalized? Changing the sign and multiplying numerator and denominator. 2 root 2 minus 2 root 6 upon 2 root 2 minus 2 root 6. So class, this is a plus b, a minus b. What is that? A plus b and a minus b is a square minus b square. So that is root 3 and 2 root 2 minus 2 root 6 upon 2 root 2 का होल स्क्वायर that is a square minus 2 root 6 का होल स्क्वायर. Isn't doubt till here class? Now class, we are going to solve this. What is common here? There is 2. Okay. And what is left behind? 2 root 2 minus 2 root 6 upon 2 का square is 4. Root 2 into root 2 is 2. 4 to the 8 minus 2 का square is 4. Root 6 into root 6 is 6. 4 6 is 24. Is that out in here class? Okay. Then you have this part. Now 2 root 3, 2 root 2, root 2, root 6 upon 8 minus 24 is minus 16. So it's 8, 2 1 2 and 2, 8 16. Now this minus sign in there class, we will take it. So then we will take the minus sign in the numerator. So root 3, root 2 minus root 6 और ये 8 आ गया. अब क्लास जो नीचे का माइनस साइन था ऊपर ले गए. अब इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर. जैसे हम इसके अंदर करेंगे तो जो प्लस की वैल्यू है माइनस हो जाएगा और जो माइनस की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 6 अपॉन 8 हो गया. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो गया? रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 8. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जाए. ये कितना हो गया? 16 18 6 3 18 माइनस 6 अपॉन 8. इससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो. देखो 3 इंटू 2 3 to 6 6 इंटू 3 18 होता है और ये 2 इंटू 3 अपॉन 8. इसमें कॉमन क्या आ रहा है? ये पार्ट आ रहा है क्लास. तो क्या हो गया? रूट 6 बाहर आ गया. यहाँ क्या बचा? रूट 3 माइनस 1 अपॉन 8%. कोई दिक्कत? मैं फिर से तो क्या बताया मैंने? यहाँ से करता हूँ स्टार्ट. ये वैल्यू हमने रेशनलाइज की है यहाँ पे. माइनस साइन चेंज करके रेशनलाइज करने के बाद में ये वैल्यू आएगी. ये वैल्यू हमारे पास आई. आने के बाद हमने क्या कर दिया? a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिया. ठीक है. तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 रूट 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 हो गया. 2 to the 4 2 इंटू 2 कितना हो गया? अगेन 2 कितना हो गया? 8 आ गया. इस तरीके से 8 आ जाएगा. इसी तरीके से रूट 2 रूट 6 की वैल्यू 24 है. 8 माइनस 24 कितना हो गया? माइनस 16 हो गया. अब यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाल दिया था ऊपर से. ठीक है. तो 2 और 16 कट जाएगा. 8 रह गया हमारे पास. माइनस साइन जो नीचे था वो ऊपर ले गया. ठीक है. तो माइनस रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 6 और माइनस साइन अंदर ले गए. तो जो प्लस की वैल्यू थी वो माइनस हो जाएगी. जो माइनस की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी. ठीक है. देख लो अरेंज कर देंगे सीक्वेंस वाइज इसको. रूट 6 माइनस रूट 2 ये वैल्यू है. इसको रूट 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने. फिर कॉमन वगैरह निकालने पे ये वैल्यू आती है. कोई डाउट इसमें क्लास?
Next is sin 30. Sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 upon sec 30 plus cos 60 plus cot 45. ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी। नाउ साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 है, माइनस कोसेक 60 की रूट 2/√3 है, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 है, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 है, प्लस cot 45 की वैल्यू 1 है। अब क्लास हम अलग अलग करके इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन ऊपर वाले एलसीएम की तरह 2√3 रहेगा और नीचे वाले की तरह 2√3 रहेगा, ठीक है। अब 2√3 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बच गया, √3 × 1 तो √3 हो गया, प्लस ये 1 रखा हमने, 2√3 को 1 से डिवाइड किया 2√3 आएगा, 2√3 × 1 2√3 आएगा, माइनस 2√3 को डिवाइड किया √3 से, √3 कैंसिल हो गया, 2 × 4 हो गया, माइनस बट अब यहाँ पे प्लस। अब वापिस 2√3 नीचे है इसके लिए, तो 2√3 को डिवाइड किया √3 से, सिर्फ 2 बचा, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, कितना गया 4 आ गया वापस। फिर 2√3 को डिवाइड किया 2 से, तो √3 रहेगा, √3 × 1 √3 हो गया, और ये 2√3 को डिवाइड किया 1 से, तो 2√3 आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है क्लास। यहाँ तक डाउट। अब देखो क्लास, ये √2√3 कैंसिल आउट हो गया, समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम समझा चुके हैं इस चीज़ को, डिवाइड में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ओरिजिन और फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। 1√3 प्लस 2√3 कितना हो गया, 3√3 हो गया, माइनस 4 अपॉन ये कितना हो गया 1√3 और 2√3 कितना हो गया 3√3 प्लस 4 हो गया। अब क्लास अगेन वही कहानी, हम क्या करेंगे, रूट में वैल्यू हमें पसंद नहीं है नीचे, हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो √3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, ठीक है। ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, सेम वही कंडीशन, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए क्या लग जाएगा क्लास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। यहाँ नोट करते हैं इसको, 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 16 हो गया, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया 27, ये हो गया 16, ये हो गया माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 12 8 से 24 सॉरी √3 अपॉन ये 27 में से 16 क्या कितना रहेगा बताइए, 11, ये कितना हुआ 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, ये सब आंसर आ गया इसका, ठीक है। कर दो इसको, now fifth part, 5 cos square 60
प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। वैल्यू भी करते हैं। कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर किया है इसने प्लस 4 इंटू सेक 30 की 2√3 है, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इसका स्क्वायर किया हमने प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 है, इसका हमने स्क्वायर किया। ठीक है, हमने वैल्यू रख दी सभी एंगल्स के लिए। नाउ 5 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का 3 रहेगा सिंपल। ये 1/4 प्लस 3/4 हो गया। ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन ये एलसीएम ले लिया हमने तो सिंपल क्या हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा ये। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, ये आ गया 12। ठीक है, 12 को डिवाइड किया 4 से 3 आया, 3 4 5 जा 15 हो गया, प्लस 12 को डिवाइड किया 3 से 4 आया, 4 16 4 जा 64 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 12 हो गया अपॉन ये 4 और 4 कैंसिल ऑफ 1 रहेगा ये, तो दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। ठीक है, अब ये कितना हो गया 15 में से 12 गया 3, 64 + 3 67, ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, हमें इसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो हमें निकालना है। ऑप्शन ए है हमारा sin 60, ऑप्शन बी है cos 60, ऑप्शन सी है tan 60 और ऑप्शन डी है sin 30। चलो सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, 2 × 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 + 10 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 1 जा 2/√3, ये कितना हो गया 1 + 1/3 हो गया। ठीक है, आगे करते हैं, 2/√3 हो गया, एलसीएम ले लिया हमने तो 3 1 जा 3 + 1/3 हो गया। ठीक है, तो 2/√3 अपॉन 4/3 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3 इज इक्वल्स टू 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4 हो गया। यह कितना हो गया 2 हो गया, ये कटा तो ये √3 आ गया यहाँ पे, तो √3/2 किसकी वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू √3/2 है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। cos 60 की वैल्यू √3/2 नहीं है, tan 60 की वैल्यू नहीं है, sin 30 की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा करेक्ट है। कोई डाउट? ठीक है, now second part, 1 - 10 square 45, 1 + 10 square 45। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, tan 90 होगी, 1 होगा, sin 45 होगा या फिर
0 हो। चलो वैल्यू रखते हैं, ठीक है। 1 माइनस 1045 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो 0/2 क्या होता है, 0 तो होता है, इसमें क्या होता है, 0 होता है। क्या 10 90 की वैल्यू है, 90 नॉट डिफाइंड है। 1 वैल्यू है, नहीं है। sin 45 वैल्यू 1/√2 है, ये 0, ये सही है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आपका सही है। कोई डाउट है यहाँ पे, ठीक है। नाउ sin 2a या फिर 2 sin a ये कब इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, हम वैल्यू रख के देख लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने 0 डिग्री का, दूसरा दे रखा हम इसने 30 डिग्री का, सी दे रखा 45 डिग्री का, डी दे रखा 60 डिग्री का। चलो हम करते हैं, वैसे करते हैं थोड़ा। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। साइन अगर a की वैल्यू मैं 60 रखता हूँ तो ये 120 हो गया, तो साइन 120 वैल्यू सेम आती है √3/2, और ये 2 इंटू √3/2, मतलब 2 से 2 का √3 आ जाएगा, यहाँ पे तो इक्वल है ही नहीं। 45 पे साइन 90 बढ़ गया, ये 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो 2 इंटू अगेन 1/√2, तो ये √2 रह जाएगा, नहीं इक्वल है। साइन 30 की वैल्यू ये 60 हो गया, 2 इंटू 30 is 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये 2 इंटू साइन 30 1/2, तो 1 आ गया, नहीं इक्वल। इसका मतलब अगर मैं यहाँ 0 रखूँ तो 2 इंटू 0 is 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर 2 इंटू साइन 0 अगेन 0 होती है, ठीक है। ये हो गया 0, ये 2 इंटू 0 क्या 0, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ऑप्शन अगेन दे रखा है इसमें, ए ऑप्शन दे रखा है इसने cos 60 की, बी ऑप्शन दे रखा है sin 60, सी ऑप्शन दे रखा है tan 60, और डी ऑप्शन दे रखा है इसने sin 30 का। चलो चेक करते हैं, वापिस वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन किया हमने, तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√2 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2/√3 हो गया, 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, √3 का 3, ठीक है। और 2/√3 अपॉन ये क्या हो गया, एलसीएम ले लेगा, तो एलसीएम कितना है 3 1 जा 3 माइनस 1, ठीक है। तो 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3, ये होगा। अगेन इसको हम क्या करते हैं, उसी तरीके से डिवाइड के तरीके से रखते हैं, रखा हमने 2 से 2 कटा, ये 1, ये √3 रह गया। ये समझ में आ रहा है √3 कैसे रह रहा है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, √3 इंटू √3 कर दिया, तो एक √3 कट गया, तो √3 रह जाएगा हमारे पास, तो √3। क्या साइन cos 60 की वैल्यू कहीं आ रही है, नहीं, साइन 60 की वैल्यू ये 3/2 है, अकेला √3 है, तो tan 60 की वैल्यू बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट। तो दिक्कत है यहाँ तक, चलो क्लास आगे करते हैं। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास, कि tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 है, और tan
a माइनस बी कितना है 1/√3। ठीक है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, a एंड b। करते हैं, चलो सॉल्यूशन। मुझे एक बात बताओ क्लास, ये 10 है यहाँ पे, तो ये वैल्यू 10 की होगी, तो 10 की कौन सा एंगल पे √3 आ रहा है, तो 10√3 tan 60 पे आ रहा है, तो tan a plus b is equals to √3, tan a plus b is equals to tan 60 आ रहा है। आ गया ना क्लास, √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 का। 10 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि 10 यहाँ पड़ा। अब क्या हुआ, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा हमारे पास, a plus b equals to 60 रहेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने ले ली, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन, tan a minus b is equals to 1/√3। ये 10 है, तो 1/√3 का बार tan 30 के ऊपर, तो tan a minus b equals to tan 30 आ गया। तो क्या रहेगा हमारे पास, a minus b equals to 30 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकंड हुई, कोई डाउट यहाँ तक ना? सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्लास a प्लस बी मैंने यहाँ रखा 60 और a माइनस बी क्या रख दिया मैंने 30 रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड होता है क्लास जिसको लिखते हैं एलिमिनेशन मेथड। जब हम डिवाइड रूल में करते थे क्लास 9 के अंदर, ये साइन चेंज कर देते थे, वैल्यू कट जाती थी। ठीक है, इसी तरीके से इसमें करते हैं हम, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। तो अब इसमें ऑलरेडी साइन अपोजिट है, तो b से b कट गया, तो a और a कितना हो गया 2a, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, तो 2a इक्वल्स टू 90, a कितना हो गया 90/2 दैट इज 45, a कितना आ गया 45 हो गया। अब किसी एक इक्वेशन तो आप पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो गया 60 हो गया, a कितना है 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, तो b कितना हो गया 60 माइनस 45, b कितना हो गया 50। ठीक है, तो a और b की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसमें वैल्यू सेम आ रही है बट अपोजिट साइन है, तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। अगर सेम साइन तो ऐड होती है। ठीक है, चलो अब है क्लास फोर्थ क्वेश्चन। हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स है, उस आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, चलो पहला बोल रहा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। चलो हम चेक कर लेते हैं क्या आता है हमारा। लेट a इक्वल्स टू 60 ले लिया हमने, लेट b इक्वल्स टू 30 ले लिया। ठीक है, चेक तो साइन 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन 60 प्लस साइन 30, ये कितना होता है 90। अब साइन 60 की, ये साइन 60 की वैल्यू कितनी है भाई, √3/2 है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 90 की वैल्यू 1 है, एलसीएम लिया तो 2 आया है। ठीक है, और ये क्या रहेगा 2√3, क्या इक्वल है, नहीं, सो फॉल्स। यहाँ हम लिखते हैं फॉल्स, आंसर में जस्टिफाई भी कर दिया इसको। ठीक है, डाउट यहाँ तक? सेकेंड क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये बोल रहे जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बिल्कुल बढ़ रही है सर। ये 0 था, ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये √3/2 है, ये 1 मतलब लगातार इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ट्रू। ठीक है, और जस्टिफाई करना है इसने, जस्टिफाई कर दो भाई, क्या दिक्कत है।
दो आप, 0 का 0, 30 का 1/2, ठीक है, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, ठीक है, और ये 90 के ऊपर 1, ठीक है। ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, जस्टिफाई कर दिया हमने। इसलिए समझ में आया ना कि 0 पे 1/2 0.5 है, फिर ये 0.5 से ऊपर चला गया, फिर इससे और ऊपर चला गया, ये 1 हो गया आपका। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि जो cos थीटा है वो इंक्रीज होगा एज थीटा इंक्रीजेस। कहीं लग रहा है आपको, जैसे थीटा बढ़ रहा है, वैल्यू मैक्सिमम थीटा के ऊपर वैल्यू 0 हो गई, मिनिमम थीटा के ऊपर वैल्यू 1 थी, सबसे ज़्यादा थी, फॉल्स हो गया ना ये, फॉल्स, ठीक है। अगेन cos थीटा वही है, 0 पे 1 हो गया, 30 के ऊपर √3/2 हो गया, 45 पे 1/√2 हो गया, 60 के ऊपर 1/2 हो गया, और 90 पे 0 हो गया, ठीक है, हो गया ना, वैल्यू डिक्रीजेस। नाउ फोर्थ, क्या है, साइन थीटा और cos थीटा दोनों इक्वल है। ये कैसे इक्वल है, साइन 0 के ऊपर तो 1 0 आ रहा है, cos 0 पे 1 आ रहा है, साइन 30 पे 1/2 आ रहा है, cos 30 पे 1√3/2 आ रहा है। फॉल्स इफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री देन साइन 30 cos 30, साइन 30 कितनी है, 1/2 है, और ये √3/2, ठीक है। फिफ्थ पार्ट ये कह रहा है कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल्स टू 0। cot A और A कितना है, 0 है, नॉट डिफाइंड है, सही है, ट्रू है। ट्रू फॉर A इक्वल्स टू 0, cot 0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड।